So from my side, ladies and gentlemen, I just would like to share, because the success of any course lies in that how much the session is being taken interactive sessions. So please, uh, this class once would be taken, it means that the participation would be continued one, or wherever you people feel some sort of issue. So please, this would be, you are supposed to be, and you should feel free to ask a question. Otherwise, because if the clarity is not there in your mind, and the confusion rests there, so I'm sure like the major purpose would not be fulfilled. First of all, I would like to share, ladies and gentlemen, the two major books would be remain our target one for our completion of this course. और इसके लिए हम एक तो अ, ये जो आप लोग देख रहे होंगे, इसमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड बिजनेस पॉलिसी बाय थॉमस एल विलन एंड डेविड हंगर, मोस्टली ये विलन एंड हंगर के नाम से ये कहलाती है। और दूसरी जो हमारी सीमा की बुक होगी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, उसको हम टारगेट करेंगे। So I hope so that your whole course that would be completed by this one, as well as naturally I think I would try my level best to share with the PPTs. These PPTs would be available to all you people through the WhatsApp, and this would be our like. But please remember, like the participation would be the hallmark. Still, मैं थोड़ा सा इस हवाले से कंफ्यूज हूँ कि अभी आप लोग के मैसेजेस तो आ रहे हैं कि ओके द लाइन इज क्लियर, बट आई थिंक no one is going to talk about. So it just seems to me that there is a monologue, mean a one-way communication is just being there. Please, hoping anyhow, I think the discussion-based lectures would be continued. In fact, now one of the major questions arise, and that is the strategic management course. I most of the time I ask to my students, why this course strategic management. Ladies and gentlemen, in fact इस कोर्स से पहले जो स्ट्रेटेजिक लेवल का है, नेचुरली आप लोग ऑपरेशन लेवल, मैनेजरियल लेवल को टच कर चुके होंगे, और उसमें जो बेसिक चीज़ें हैं जिनमें इंटरप्राइज मैनेजमेंट लाइक दैट, वो आप लोग उस कोर्स को ले चुके होंगे, जिसके अंदर बेसिक मैनेजमेंट, मार्केटिंग, ऑपरेशंस वगैरह आप लोग पढ़ चुके होते हैं। तो सवाल ये है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ये जो सब्जेक्ट है, और स्ट्रेटजीज मेकिंग की बुनियादी रीजंस क्या हो सकती है, और क्यों हम इसको चीज़ को करते हैं। एनीवन वुड लाइक टू शेयर विद मी कि व्हाई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, प्लीज। जी जी प्लीज, अजीम प्लीज। प्लीज, anybody would like to share why strategic management? Excuse me. Why strategic management? Please. Azim. Mr. Azim. Okay, I think actually once the question raised regarding the strategic management. So, ladies and gentlemen, the basic reason of studying such subject and to make learning to students is
The basic is because as our competition in our surrounding is being increased, ladies and gentlemen, the hyper competition is the major reasons. That's why companies, for the survival, the companies do need to make strategies. Please keep in mind, hyper competition, severe competition is the basic reason, because once competition increase, so the survival, the sustenance, and the growth is always a tough one, because there is attacks, there is everyone is competing very, and cutthroat competition basically is there. तो उस सूरत में हर कंपनीज को अपनी पोजीशन के मुताबिक उसको अचीव करने के लिए स्ट्रेटजीज की जरूरत होती है. तो प्लीज excuse me, anybody would like to ask me? Hello. Hello. जी please. Hello, can you hear me? जी please. Excuse me. जी जी सर, दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिएगा. आपकी बात, आपकी वॉइस काफी लेना डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, तो मुझे समझ में नहीं आई आपकी बात. अच्छा नहीं, क्या मैं एक्सप्लेन करूं मैम प्लीज? स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की इनिशियल डेफिनेशन आपने एक्सप्लेन की थी, और वो दोबारा एक्सप्लेन करते हैं. नहीं, मैं अभी आ रहा हूं, अभी मैं आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक, लेकिन उसमें मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव टू आस्क अ क्वेश्चन कि इफ समन आस्क यू कि व्हाई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कि हमें क्यों जरूरत पड़ती है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, तो इसका सिंपल आंसर यह है कि वी डू नीड अ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बिकॉज इन आवर markets once the competition is increased, हाइपर कंपटीशन और जो चेंजेबिलिटी वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है, आए दिन कुछ ना कुछ चीज़ें टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, आई मीन लाइक दीज आर ऑल फैक्टर जब चेंज होते हैं, तो उस सूरत के अंदर वहाँ पे ये है कि हमें स्ट्रेटजीज की ज़रूरत होती है. अब मैं उसकी एक सिंपल एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि फ़र्ज़ करें कि अगर एक फॉर्म मोनोपोली में काम कर रही है, और मोनोपोली का मतलब है कि दिस इज अ सोल सिंगल मैन्युफैक्चरर इन अ होल कंट्री, इन अ होल मार्केट. तो इसका मतलब जब आप वंस यू आर इन अ मोनोपोली, तो देयर इज नो सीवियर कंपटीशन, सो दैट्स व्हाई सर्वाइवल इज ऑलवेज इजी. लेकिन अगर जब हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में और एक परफेक्ट कंपटीशन में जब जाते हैं, जहां पे बहुत सारे ज्यादा मैन्युफैक्चरर्स बैठे होते हैं, और देयर इज a number of firms which are supposed to come in the existing competition, और competition बढ़ता जा रहा है, और फिर टेस्टल के मुताबिक पॉलिटिकल, आई मीन लाइक इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, ये जो जितनी भी चीजें जब चेंज हो रही होती हैं, तो नाउ माय डियर द सर्वाइवल वुड ऑलवेज बी टफ वन. सो दैट्स व्हाई आई थिंक दिस रीजन कि जब आपके कंपटीशन बढ़ेगा, तो आई एम श्योर लाइक लेडीज जेंटलमैन, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्ट्रेटजीज की जरूरत पड़ेगी, और जहां आप स्ट्रेटजीज की तरफ जाएंगे, तो फिर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वहां पे फॉल करेगा आती है. अब आइए प्लीज, वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस वन कि ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है क्या चीज है. ये आपको जो विलन की बुक की ये पीपीटीज हैं इस हवाले के साथ, बेसिकली strategic management is a set of managerial decisions and actions that determine the long run performance of a corporation. It mean के जब कोई कंपनी जो है वो मैनेजरियल डिसीजंस और एक्शन करती है फॉर द पर्पस ऑफ द लॉन्ग रन परफॉर्मेंस ऑफ कॉर्पोरेशन, तो माय डियर दिस वुड बी कॉल द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वन. अच्छा, इसी पे I just would be going to talk about this one कि जी हमारे पास जब हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो ये जो हमारे पास हैं, इन आई मीन दीज आर द फेजेस लाइक कि हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की स्टेजेस हैं, वो हमारी 4 स्टेजेस. और यहाँ पे थोड़ा सा आई जस्ट वुड बी टॉकिंग, अगर आप जितनी भी बुक्स देखेंगे, तो कुछ बुक्स कहती हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की
3 स्टेजेस हैं और कुछ बुक्स कहती हैं कि देयर आर 4 स्टेजेस। टेक्निकली जैसे कि विलन की बुक वो कहती है कि ये स्टेजेस हैं कि जब आप मैनेजरियल डिसीजंस और एक्शन टू डिटरमिन द लॉन्ग रन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉरपोरेशन आप करना चाहते हैं, उसके लिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व। उसमें हम इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, इन्वायरमेंटल एनालिसिस हम करते हैं, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन और स्ट्रेटेजी इवोल्यूशन एंड कंट्रोल। तो प्लीज आप लोगों ने सबसे पहले तो इस बात को जहन में रखेंगे कि ये 4 स्टेजेस को और 4 फेजेस को आप लोग लेंगे कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसको अगर आप चाहें तो 3 स्टेजेस भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप 3 स्टेजेस लेते हैं तो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के अंदर ही ये इन्वायरमेंटल स्कैनिंग आ जाती है। तो बहरहाल अगर आप फ्रेड की बुक को अगर आप देखेंगे तो वो कहते हैं जी कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की स्टेजेस 3 हैं, एंड दैट इज स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन एंड स्ट्रेटजी इवोल्यूशन एंड कंट्रोल। तो लेडीज जेंटलमैन, जब हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि हमें स्ट्रेटजी बनाने के लिए हम स्ट्रेटजी को पहले इन्वायरमेंट को स्कैन करते हैं, फिर हम फॉर्मुलेशन होती है, फिर इम्प्लीमेंटेशन हम करते हैं और फिर स्ट्रेटजी की इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल की तरफ हम चले जाते हैं। तो दैट्स व्हाट आई थिंक हमारे पास इस हवाले के साथ ये जो चीज़ है दिस इज व्हाट। तो जी, अब लाइकवाइज हमारे पास एक इसकी बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अगर आप देखना चाहें तो फॉलोइंग आर द 3 बेनिफिट्स। ये मतलब है कि हम जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कर रहे हैं इसके 3 मेजर क्लियर कट बेनिफिट्स वो ये हैं। क्लियर सेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन फॉर द फर्म, कि जब आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जाते हैं तो नेचुरली कंपनी को अपनी स्ट्रेटेजिक विजन, स्ट्रेटेजिक मिशन फॉर्म करना पड़ता है, और दैट्स व्हाई आई थिंक कोई कंपनी बगैर मिशन और विजन के अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज नहीं बना सकती। तो सबसे बड़ा बेनिफिट इसका क्या है कि क्लियरर सेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन फॉर्म होती है। नंबर 2, शार्पर फोकस ऑन व्हाट इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट वन। इसका मतलब आप फोकस करते हो कि स्ट्रेटेजिकली के ब्रॉडर सेंस में कंपनी के लिए सबसे अहम चीज क्या है। और माय डियर, थर्ड वन इज इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट। जब आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जाते हैं तो आपको आपके एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आती हैं उसको आपको विजुलाइज करना होता है, और दैट्स व्हाई हम सॉट एनालिसिस की बात करते हैं। सॉट मीन स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स की बात होती है। तो दिस इज व्हाट, इससे हमें विजन की सेंस क्लियर होती है। हमने जहाँ फोकस करना होता है स्ट्रेटेजिकली वो हम फोकस करते हैं, और हमारे पास रैपिडली जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसकी हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं। दिस इज व्हाट दैट वी आर गेटिंग। एडिशनल बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये माय डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमारे पास ये भी एक है, इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस होती है, अचीव अ मैच बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट एंड इट्स स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस, हमें फायदा होता है। इम्पॉर्टेंट इन अनस्टेबल इन्वायरमेंट। अब अनस्टेबल इन्वायरमेंट मीन के द इन्वायरमेंट विच इज रैपिडली चेंजिंग, और जब आप का इन्वायरमेंट बड़ा रैपिडली चेंजेस होता है तो डियर स्टूडेंट्स यू नेचुरली नीड टू एडजस्ट योर स्ट्रैटेजी, कि आपको करना पड़ेगा कि और उसको स्ट्रैटेजी में तब्दीली लानी पड़ेगी। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इससे आती हैं, और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का मतलब ये है कि a broader based long term thinking mean you are planning for the next 3 year, for the next 4 year, 5 year, 10 year, because in simple planning हम ऐसा नहीं करते, और इससे ऑर्गेनाइजेशन की लर्निंग भी होती है। These are the benefits, additional benefit that we do have. जी please, any question ladies and gentlemen? सर यू सेड के ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग, जी जी सर एक्सप्लेन कर दीजिएगा सर। ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग, देखिए डियर स्टूडेंट्स, देखिए ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग क्या है, बल्कि ये 2 कॉन्सेप्ट फॉल होते हैं।
एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होती है और देखो ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग का मतलब है कि आप जब वंस यू एंटर्ड इनटू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यू आर कंडक्टिंग योर एनालिसिस और टूल एंड टेक्निक, तो और अपने अंदर जब आप चेंजेस लाते हो तो माय डियर उन चेंजेस की वजह से मतलब लेट्स से आपने एक टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी लगाई है ताकि आप बेहतर मुकाबला कर सकें, तो माय डियर जब ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी आप लगाएंगे तो आपकी कंपनी के जो एज ए होल जो लोग हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, वो सीखेंगे और वो जो आपने लर्न किया, आपका एक्सपीरियंस कर्व बेहतर हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग। लिहाजा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का वन ऑफ द बेनिफिट, चूंकि आप हमेशा कंपेटिटिव होने की कोशिश करते हो, क्वालिटी को बेहतर करने की कोशिश करते हो, यू वुड लाइक टू टेक अ कंपेटिटिव एडवांटेज ओवर योर अदर कंपेटिटर्स, तो आई एम श्योर लाइक जब आपने एडवांटेज लेना है, कंपेटिटिव एडवांटेज, तो आई एम श्योर लाइक यू मस्ट हैव टू learn the new techniques, learn the new skills, and learn the new capabilities and potentialities. So once your systems, your people, your employees, your managers जब एक नई से नई चीजें सीखेंगे और ये जो कलेक्टिव आपने जो सीखा है इसको अजीम साहब हम क्या कहेंगे, दिस वुड बी कॉल्ड दी ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग। ओके, All clear, sir. Thank you. अच्छा माय डियर, जैसा कि आई जस्ट स्टार्टेड माय डिस्कशंस अगेन, that is what the globalization and environmental sustainability challenges to strategic management। ये हम दो बातों की बेसिस के ऊपर अगर मैं इसको रिलेट करूं तो अगेन बात वही है जो मैंने कहा था, हाइपर कंपटीशन, बिकॉज योर कंपटीशन इज इंक्रीजिंग। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं उसकी एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक टाइम था हमारे जो बड़े हैं बुजुर्ग वगैरह वो या आज से 40 साल पहले जिन लोगों ने एफए किया होता था, बीए कर लेते थे, उनको फौरन जॉब ऑफर हो जाती थी। लेकिन आज बीए करने के बाद ऑफर जॉब नहीं होती, मास्टर करने के बाद भी जॉब ऑफर नहीं होती। वजह क्या है? कंपटीशन हैज बीन इंक्रीज इन योर सराउंडिंग, so there are a lot of people are there, so you have done your masters, but there are certain people who have done their MPhil, there are certain people who have done their PhD program। अच्छा, once you are applying somewhere else like, तो वहां पे क्या चीज होती है कि आपकी एप्लीकेशन के साथ एक MPhil बंदा भी और बहुत सारे कैंडिडेट जिन्होंने PhD की हुई है, जिन्होंने बाहर से स्टडीज की हुई है। दैट्स व्हाई आई थिंक टू गेट अ जॉब इज गोइंग टू बी अ टफ वन जॉब। अब क्या हाल है? इसके लिए आपको माय डियर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग लानी पड़ेगी कि मैंने अपनी इस इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए मैं क्या और किस तरीके से अपनी उस पोजीशन, उस टारगेट को मैं अचीव कर सकूं। तो नेचुरली आई थिंक जब आप अपना प्लान फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर कर रहे हैं, 5 ईयर कर रहे हैं, 3 ईयर कर रहे हैं कि अगले 10 सालों में मैंने क्या करना है, तो माय डियर यू हैव टू मेक योर स्ट्रेटजी। अच्छा, अब देखिए बात ये है कि ये दो चीजें जो हैं, दिस हैज मेड चैलेंज टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, मीन these have created the tough things like, और वो दो हैं, एक तो है ग्लोबलाइजेशन की वजह से और दूसरा इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी दी another reasons like। देखो ग्लोबलाइजेशन क्या है, जिसे हम बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन और वी आर टॉकिंग द इंटरेक्शन, इंटीग्रेशन एंड इंटरनलाइजेशन ऑफ मार्केट्स एंड कॉरपोरेशंस माय डियर, सिंपलेस्ट सेंस में। अब इंटीग्रेशन एंड इंटरनलाइजेशन, देखिए आज आप की जो कंपनीज हैं वो इंटीग्रेट हो गई हैं इस सेंस में कि उसकी जो चीज आपने बनानी है और बहुत सारी चीजें इनपुट्स हैं वो आप अब्रॉड से ले रहे हैं, और उसका रॉ मटेरियल, उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी बहुत सारी चीजें। तो इट मीन दैट यू कैन नॉट मेक योर प्रोडक्ट solely in your own country, you must have to purchase a certain raw material or certain inputs। तो योर आपके जो सप्लायर्स हैं वो तो बाहर बैठे हुए हैं और वहां से आप इनपुट ले रहे हैं। इसका मतलब है कि उनकी इनपुट के बगैर आप अपनी प्रोडक्शन यहाँ पे बैठ के नहीं बना सकते। लिहाजा इनपुट, प्रोडक्शन और फिर आउटपुट जो आप कर रहे हैं, मीन आप इनपुट लेते हो, चीज को बनाते हो और बना के अल्टीमेट आप कस्टमर तक पहुंचाने की कोशिश करते हो। अब आपका कस्टमर वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है, देयर इज पॉसिबिलिटी कि व्हाट यू आर मेकिंग, सो यू हैव टू डिलीवर योर प्रोडक्ट टू द होल वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल सुजुकी क्या कर रही है, सुजुकी की जो प्रोडक्ट्स हैं दे आर मेकिंग अ प्रोडक्ट्स फॉर द होल वर्ल्ड।
So I mean, Toyota, what they are doing, so their client is not only in Japan only, their client is sitting in throughout the world like. तो अब क्या हुआ कि जो होंडा टोयोटा की जो इनपुट्स हैं वो मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से वो बाय करते हैं, उसको संभल करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के कस्टमर्स को वो डिलीवर करते हैं. दिस इज व्हाट ग्लोबलाइजेशन. तो माय डियर, अब इंटरनलाइजेशन ऑफ मार्केट्स का मतलब क्या है कि आपकी मार्केट्स आर नो मोर नेशनल मार्केट ओनली. पाकिस्तानी प्रोड्यूसर्स आर नॉट जस्ट competing इन पाकिस्तानी मार्केट, they have to compete internationally. मीन जो हम कपड़ा बनाते हैं तो जब वो अब्रॉड में जाएगा तो वहाँ इंडिया भी है, वहाँ बांग्लादेश भी है, वहाँ कोरिया भी है, वहाँ बैंकॉक वाले लोग भी हैं, वहाँ जैपनीज भी हैं, वहाँ अदर. नाउ देयर इज तो सच मार्केट बिकम. अच्छा, अब ये जो ग्लोबलाइज हुआ है जिसमें हमारा इंटरेक्शन विद इंटरनेशनल वर्ल्ड और इंटरनेशनल कंपेटिटर्स, तो माय डियर जो चीज़ है आप देखें अगेन कंपटीशन इज बिकमिंग मोर सिवियर विद द पैसेज ऑफ टाइम. दुनिया में एक ज़माना था पहले लोकल चीज़ें बनती थी, लोकल बिक जाती थी. फिर ज़माना क्या हुआ कि ज़्यादा नेशनल आ गया कि आप मुल्क के अंदर चीज़ों को बेच रहे हैं. लेकिन अब क्या है, इंटरनलाइजेशन. और जितनी दुनिया में इंटीग्रेशन एंड इंटरनलाइजेशन ऑफ मार्केट्स एंड कॉरपोरेशन ज़्यादा होगी माय डियर, वहाँ पे क्या है कि दिस इज़ वन ऑफ द बिग challenge to strategic management. So that's why I think you need to develop and design your strategies for the next 5 year, for 10 year, whatever the case. So this is one of the challenge. तो globalization का मतलब है कि competition increase हो रहा है और आपका competition is not local, is not just at a national level, rather your competitors are internationally. आप यहाँ है, आपके जापान, आपके जर्मन, आपके अमेरिकन, आपके इंडियन और इनके साथ मुकाबला है इंटरनेशनल मार्केट में. दैट्स व्हाई आई थिंक सो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज वन ऑफ द. दूसरी बात डियर स्टूडेंट्स इज एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. ये बड़ा एक खूबसूरत कॉन्सेप्ट है विच इज लाइक चूँकि हमें इन्वायरमेंट को, चूँकि अक्सर ये कन्फ्यूजन स्टूडेंट के माइंड में रहती है सस्टेनेबिलिटी क्या चीज़ है, कि इसको मैं थोड़ा सा CSR के साथ, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लिंक करूंगा. जिन लोगों ने मार्केटिंग पढ़ी है और वो सोसाइटियल मार्केटिंग आपको यही सिखाती है. तो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी क्या है? द यूज ऑफ बिजनेस प्रैक्टिसेस टू रिड्यूस अ कंपनीज इम्पैक्ट ऑन द नेचुरल फिजिकल इन्वायरमेंट. इसका मतलब है माय डियर, वट एवर यू आर मेकिंग, मैं फॉर एग्जाम्पल आप एक एंग्रो वाले अगर फर्टिलाइजर बनाती है तो फर्टिलाइजर बनाते हुए जो ट्रीटमेंट प्लांट और उनमें जो गैसेस निकलती हैं, अगर वो गैसेस माय डियर आपके इन्वायरमेंट को डैमेज कर रही हैं, तो दिस इज वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम. दैट्स व्हाई योर इन्वायरमेंट इज गोइंग टू बी डिके इन फ्यूचर. अब एज ए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट दिस इज वन ऑफ द बिग चैलेंज, और दैट्स व्हाई यू मस्ट नीड टू ऑप्ट सर्टेन प्रैक्टिसेस, लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, जिससे आपका जो नेचुरल और फिजिकल इन्वायरमेंट है वो सस्टेन रहे. और सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि उसके अंदर प्योरिटी को बना रखा जा सके और उसकी डिके जो है वो ना हो सके. ये दुनिया के, अब उसको करने के लिए नेचुरली बात है आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी. और दैट्स व्हाई आई थिंक देयर इज द सॉर्ट ऑफ इशू इज देयर. तो माय डियर, फाइनली अभी हमने दो रीजन जो पढ़ी हैं चैलेंजेस टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, वो क्या है? एक ग्लोबलाइजेशन और दूसरा इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. और ग्लोबलाइजेशन को दूसरे लफ्जों में जो मैंने स्टार्ट में कहा था, वाई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. तो जब भी आपसे पूछा जाए कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की हमें ज़रूरत क्यों है, तो माय डियर यू विल आस्क बिकॉज हमारा कंपटीशन इज बिकमिंग मोर acute, more sharper, more hyper, more intensive. So that's why जहाँ कंपटीशन ज़्यादा बढ़ेगा आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आना पड़ेगा. अच्छा, मैं यहाँ पे आई जस्ट वुड बी टॉकिंग, बल्कि मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से करना चाहूँगा. माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, मसलन मार्केटिंग, तो मार्केटिंग के अंदर स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग है, HRM स्ट्रेटेजिक HRM है. आप लोग फाइनेंस पढ़ते हैं तो स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है. आप इवन मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो स्ट्रेटेजिक आई मीन दी मैनेजमेंट अकाउंटिंग आ गई. ठीक है, तो बात यह है कि TKM है, TKM के अंदर भी स्ट्रेटेजिक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है. तो दुनिया में हर चीज़ अब
स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बन गई। उसकी वजह यह है कि कोई भी जो कंपनी है वो अपनी प्रोडक्ट बगैर उस स्ट्रेटजीज के नहीं बना सकती, बिकॉज यू मस्ट हैव टू सी, यू मस्ट हैव टू सी, और आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, क्योंकि आज आप देखिए, अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा आज उसमें होनी है बात। तो देखें, बात यह है कि जब कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज बनती है, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज बनती है, फाइनेंशियल फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज बनती है, तो माय डियर आपका जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जब ऊपर से कॉर्पोरेट लेवल पे स्ट्रेटजीज बनेगी तो नेचुरली आपकी फंक्शनल जो डिपार्टमेंट है, अगर ऊपर एक 5 साल की प्लानिंग हो रही है तो फाइनेंस वालों को, मार्केटिंग वालों को, एचआर वालों को आपको भी प्लानिंग उस स्ट्रैटेजी को अचीव करने के लिए 5 ईयर करनी पड़ेगी। एचआर वालों को अगले 5-10 सालों के लिए अपनी ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने की प्लानिंग करनी पड़ेगी। और जब आप अपनी प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर, 10 ईयर, इन ऑर्डर टू गेट सम कंपेटिटिव एडवांटेज आप करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका रोल क्या बन गया, वो स्ट्रेटेजिक रोल हो गया, जो कि अल्टीमेट आपने अपनी कंपेटिटिव पोजीशन को फाइंड करना है। और जहां आप अपनी कंपेटिटिव पोजीशन को फाइंड करने के लिए आप ऐसा करते हैं, वो आपकी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। लिहाजा आपका जो फाइनेंस है, वो उसका काम ये नहीं कि अगले 6 महीनों के लिए फंडिंग को अरेंज करना है, बल्कि फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर, 10 ईयर। मार्केटिंग का काम ये नहीं कि एक ब्रांड बना के बस बेचना है, बल्कि उसको फॉर द नेक्स्ट सक्सेसफुल, वो जो 4 P's है उसको इस्तेमाल करके उन्होंने अपनी कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। दैट्स व्हाट आई थिंक सेम इज द केस विद द एचआर साइड। तो ह्यूमन रिसोर्स, आपकी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये और ऑपरेशन मैनेजमेंट, और आई मीन जितने भी एरियाज हैं, इनका रोल आज की दुनिया में कौन सा है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का रोल है। दैट्स व्हाई these all subjects have become and being taken and treated as a strategic role इनका है। तो एचआर का रोल स्ट्रेटेजिक है, जो कि ब्रॉडर बेस्ड है, लॉन्ग टर्म है, ठीक है। और इसी तरीके के साथ लाइकवाइज अदर जो है आपकी फाइनेंस, ऑपरेशन मैनेजमेंट, इनका रोल भी स्ट्रेटेजिक है। आई वुड लाइक टू आस्क एट द मोमेंट, इफ यू डू हैव सम सॉर्ट ऑफ इशू, प्रॉब्लम, प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, एनीवन इज सपोज्ड टू आस्क मी, प्लीज। जी जी प्लीज, अजीम जी, ओके ओके प्लीज। Any question, Azim? Excuse me. Excuse me. Azim, I am interested. You are supposed to talk, please. जी, anyone? आप लोग मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, कोई पार्टिसिपेट नहीं करते आप लोग? हेलो सर, आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही, प्लीज जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बनाते हुए हम इन्वायरमेंटल स्कैनिंग को देखते हैं, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखते हैं कि कंपटीशन किधर जा रहा है, तो वो स्ट्रेटेजी हम इंटरनल फैक्टर्स की बेस पे नहीं बनाते, इंटरनल फैक्टर्स किधर हम एनालाइज करते हैं फिर? देखिए बेटा जी, वन थिंग, मैं आगे चल के मैंने 2 बातें बतानी है, इनके बगैर आपकी स्ट्रेटेजी कभी नहीं होगी। नंबर 1 मिशन और विजन, और नंबर 2 आपका इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। अच्छा, जब आप इन्वायरमेंटल स्कैनिंग की बात करते हो तो इन्वायरमेंट, अब आइए जरा उसकी भी डेफिनेशन करते हैं। इन्वायरमेंट आर द ऑल दोज फैक्टर्स, फोर्सेस, कंडीशन विच हैव अ पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन योर बिजनेस, वो आपका इन्वायरमेंट है। अच्छा, इन्वायरमेंट की 2 टाइप है माय डियर, एक एक्सटर्नल है और दूसरा इंटरनल है। अच्छा, आपका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसमें आपकी होती हैं अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। आप देखते हैं अपॉर्चुनिटीज वो फैक्टर्स हैं जो आपके बिजनेस को आई मीन वो प्लस करते हैं और फायदा देते हैं, और थ्रेट्स वो चीजें हैं जो आपके बिजनेस को इम्पीड करती हैं, कॉन्स्ट्रेंट करती हैं, हर्डल क्रिएट करती हैं। तो आपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करके, स्कैन करके माय डियर, आपने अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स फाइंड की, और इंटरनल एनवायरनमेंट से आप यू आर सपोज टू फाइंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, कि आपके वो एरियाज क्या हैं जहां आप दूसरों के मुकाबले में बेहतर हैं, और वो एरियाज जिनमें आप दूसरों के मुकाबले में कमजोर हैं। मैं फर्ज करें
इस वक्त आप जो आपकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल आपकी कंपनी कर रही है वो बाकी जितने भी कंपैटिटर उनसे सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी आपके पास है। तो माय डियर आपकी ये क्या है, स्ट्रेंथ है। ठीक है, गाड़ी का जो डिजाइन है, फर्स्ट जो आपका डिजाइन है वो किसी और के पास ऐसा नहीं है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। आपकी कैश, लिक्विडिटी, टेंजिबल, इंटेंजिबल, नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, आपकी पीपीई जो है, आई मीन दी प्लांट प्रोडक्शन एंड इक्विपमेंट्स वगैरह। तो ये जो चीजें हैं जिसको हम आगे चल के हमने आरबी व्यू पढ़ना है, रिसोर्स बेस्ड व्यू, ठीक है जी, कि हमारे रिसोर्सेज का पोटेंशियल कितना है। तो माय डियर आपको इन्वायरमेंटल एनालिसिस जब आप करते हैं तो सिंपली आप अपने इंटरनल इन्वायरमेंट की बेस के ऊपर स्ट्रेटजीज नहीं बन सकती। उसकी बजाय कि जब तक आपको आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आपकी अपॉर्चुनिटीज का नहीं पता, आपकी थ्रेट्स का नहीं पता, तो यू आर नॉट सपोज टू मेक योर स्ट्रेटजी। सो दैट्स व्हाई आई थिंक अभी से आप लोग माइंड में रखेंगे कि इन्वायरमेंटल स्कैनिंग जो हमने स्टार्ट में उसकी स्टेजेस की बात की है वो हम बात कर रहे हैं। तो उसमें आप विदाउट योर इन्वायरमेंटल एनालिसिस माय डियर you cannot conduct any sort of thing. So that's why to me two things are highly important and essential कि उसके बगैर हम स्ट्रैटेजी की लोकेशन के स्ट्रैटेजी क्या होगी ये हम तो सबर भी नहीं कर सकते। नंबर वन मिशन और विजन, नंबर टू देयर इज द इन्वायरमेंटल एनालिसिस, ठीक है, जिसको हम कुछ बुक्स ऑडिट भी कहते हैं, एक्सटर्नल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट का मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल ऑडिट मीन अपॉर्चुनिटीज एंड आई मीन थ्रेट्स, और इंटरनल मीन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, सो सॉट एनालिसिस। तो डियर इसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। तो सो फार एज योर क्वेश्चन इज कंसर्न कि जी स्ट्रैटेजीज हमारी इंटरनल की बेसिस के ऊपर बनती हैं, तो इसको मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इंटरनल इन्वायरमेंट के साथ साथ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जब तक आप असेस नहीं करोगे उस वक्त तक हम ऐसा नहीं हो सकता। जी प्लीज। ठीक है Got सर, it? ओके फाइन। थैंक यू। कैसा आप लोग, यू आर कंफर्टेबल विद माय लेक्चर? यस सर। Yes, sir. यस सर। प्लीज अपना नॉइज लेवल बढ़ाइएगा, इंटरेक्शन करें Yes, मेरे sir. साथ, क्योंकि Yes, जितना sir. इंटरेक्शन करोगे आई विल बी मोर कंफर्टेबल, बिकॉज आई डोंट बिलीव दैट कि रटालाइजेशन नहीं होनी चाहिए, चीजों की अंडरस्टैंडिंग प्लीज करेंगे आप लोग। इंशाल्लाह हम अगले आगे चल के वी आर सपोज टू क्रिएट अ टीम और हमारी अंडरस्टैंडिंग, और जब तक आप जो आपके माइंड में जो कुछ है आप प्लीज पूछिए, आई विल बी देयर टू रिस्पॉन्ड यू पीपल लाइक, ओके। नाउ प्लीज naturally जो impact of environmental sustainability, risk of climate change include, आप उसमें जब आपकी ये रिस्क हैं, ये रेगुलेटरी रिस्क हैं, अब ये रेगुलेटरी रिस्क आपके जो गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन जब चेंज करती है तो उसकी वजह से रिस्क, मैं भी रिस्क की भी बात करता हूं अभी, क्योंकि हम बहुत सारे रिस्क पढ़ते हैं। रिस्क होता क्या है? सप्लाई चेन रिस्क इज देयर। अब सप्लाई चेन रिस्क बेसिकली क्या है? आज की दुनिया में सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात होती है, ठीक है, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज बेसिकली द इंटीग्रेशन एंड कनेक्टिविटी ऑफ फोर पार्टीज। नंबर वन सप्लायर, नंबर टू प्लस कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है, नंबर थ्री डिस्ट्रीब्यूटर, और नंबर फोर कस्टमर। तो देखो इन चारों के दरमियान हमें एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट करनी होती है कि हम टाइमली चीज़ों को परचेज करें, मीन सप्लायर से, मीन इनपुट कंपनी बना के, और फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर उसमें इन्वॉल्व होते हैं और अल्टीमेट कस्टमर। इन तक चीज़ों को पहुंचाने में कई किस्म के रिस्क इन्वॉल्व हैं। जैसे सप्लायर अगर उसमें अगर माल की क्वालिटी वो नहीं देता और माल को लेट आप तक पहुंचते हैं, और जो आपने ऑर्डर दिया है उसमें 2 दिन 3 दिन का लेट अगर हो जाता है, तो माय डियर, so what you are intended to deliver your quality to ultimate customer, you may not be able to make available such quality to your customer. That's why आज की दुनिया में जो environmental sustainability में जो risk हैं उसमें supply chain risk, product and so technology risk is there. Technology risk is this one, once technology change, so that's why I think आपकी product की value कम हो जाती है। उसकी best example आप लोगों के मोबाइल्स हैं, और आज देख लें
बड़े ऑब्सोलेसेंस, इसके लिए मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऑब्सोलीट होना, ऑब्सोलेसेंस, क्योंकि हर टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट और नए मॉडल आने पे जो पुराने मॉडल की वैल्यू में कमी आती है उसको हम ऑब्सोलेसेंस कहते हैं, ऑब्सोलीट। जिस तरह नोकिया नोकिया कंपनी, जी 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 बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। नोकिया निकल गया, इवन आपके पास अब वो जो आईफोन है, आईफोन 5S अब नहीं को लेना चाहेगा, उसके आगे नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, नए मॉडल आ चुके हैं, तो दैट्स व्हाई। अच्छा, तो 5S की वैल्यू क्यों कम हुई है? वजह उसकी, उसके पैरेलल में देयर आर मोर एडवांस टाइप ऑफ आई मीन द मोबाइल सेट्स आर available even in iPhone, so that's why every new model and every new technology basically causing for the reduction of value of the previous model. So ये risk है, this is called product and technology risk. Litigation risk is there, reputational risk, आपकी goodwill एक क्योंकि अगर कंपनी की कोई भी चीज अगर प्रॉपर नहीं है तो आपकी रेपो में बी डैमेज, और फिजिकल रिस्क आर सर्टेन टाइप। लेकिन डू यू लाइक टू टॉक लेडीज जेंटलमैन, रिस्क होता क्या है? जी सर अनसर्टेनिटी ऑफ लॉस, अनसर्टेनिटी ऑफ लॉस, अच्छा ओके ओके, लेकिन माय डियर इसमें थोड़ा सा मेरी एक एप्रीहेंशंस होती हैं। देखो अनसर्टेनिटी ऑफ लॉस में जो चीज है ही अनसर्टन, तो उसमें रिस्क तो है, लेकिन कितना रिस्क है वो तो हमें नहीं पता चला। मतलब उसमें रिस्क 100% भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि वो है ही चीज अनसर्टन, और जो चीज अनसर्टन है वो अनमयर्ड है, जो चीज अनमयर्ड है उसका तो हमें पता ही नहीं। आप जरा नोट कीजिएगा, जब भी कभी आप रिस्क की डेफिनेशन करेंगे तो ये लिखिएगा, डेफिनेशन लिखें कि रिस्क इज द चांस ऑफ वेरिएबिलिटी from the chance of variability या deviation from the expected outcome. Clear? Chance of deviation, variability from the expected outcome. देखिए आप देखिए, ये जो मैंने प्रोबेबिलिटी का लफ्ज इस्तेमाल किया ना, ये जिन्हों स्टूडेंट ने एक ने बात की थी कि जी लॉस ऑफ अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी लॉस। देखो अनसर्टन का मतलब यह है कि उसके अंदर वेरिएबिलिटी है, और वेरिएबिलिटी कितना है वो तो हमें पता ही नहीं। तो माय डियर हम फिर पता क्या करते हैं, किसी भी चीज को मेजर करने के लिए हम प्रोबेबिलिटी इस्तेमाल करते हैं, और प्रोबेबिलिटी का मतलब है चांस ऑफ अकरेंस। फॉर एग्जांपल मैंने एक बात कही, टॉस अप करके मैंने कहा कि जी इस चीज के 90% चांस है कि ये मैं टारगेट अचीव हो जाएगा, और 10% है नहीं होगा। अब ये माय डियर वो जो 10% ना होने के चांसेस हैं उसको आप क्या नाम दोगे? लॉस। लॉस इज द एक्सपेक्टेड डेविएशन, or I mean it is a chance of expected outcome, a deviation from the expected outcome. अगर आप सिंपल इसको कहोगे ना वेरिएबिलिटी, वेरिएशन ऑफ लॉस, तो माय डियर वो कंप्लीट डेफिनेशन नहीं होगी। अब ये सब के सब जो लॉसेस हैं ये हमने बात की है, और नेचुरली दीज आर द लॉसेस। तो एनी हाउ आई थिंक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में such sort of things would be facing। जी क्लियर है आप लोगों को? जी सर। अच्छा जी, अब अगर आप थोड़ा सा आज हम देखना चाहते हैं, आप लोग ये स्लाइड यू कैन सी थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एडेप्टेशन। देखो मैं माय डियर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए बल्कि एक और स्लोगन जरा ज़हन में रख लें। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कहती है चेंज और डाई। क्या कहती है? चेंज और डाई। या तो अपने आप को बदल लो, और अगर नहीं बदलना तो फिर मर जाओ। मर जाओ मीन के मरने से यहाँ मतलब है कि यू विल बी वॉश आउट, वाइप आउट फ्रॉम योर कंपटीशन। Just like in Pakistani market, Nokia has been wiped out. The reason the Nokia has not
opted and Being able to survive. adapted for the technology. आज आप देख लें कि एक टाइम था 20 साल पहले लोग नोकिया की बात करते. इट वाज कंसिडर्ड एज अ सिंबल ऑफ आई मीन लाइक द क्वालिटी, बट नाउ इट्स नो मोर. उसकी जगह कोई दूसरा आ गया. वजह क्या की कि नोकिया हैज नॉट अडेप्टेड. तो माय डियर, आप लोगों ने वो जो चेंज और डाई, जब चेंज की बात करते हैं तो अडेप्टेशन की बात होती है. और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज लाइक, बल्कि दुनिया में जब आप ऑनगोइंग प्रोसेस माय डियर कहते हैं तो दिस इज आपको अडेप्टेशन करनी पड़ेगी, चेंज लानी पड़ेगी. चेंज नहीं लाओगे तो हम मार्केट से निकल जाओगे, हम वाइप आउट हो जाएंगे. वी कैन नॉट कम्पीट सक्सेसफुली. दिस इज व्हाट दैट बेसिकली हमने थोड़ी सी बात आपको, तो यहाँ पे थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अडेप्टेशन की बात की है. और यहाँ 4 किस्म की ये बातें हैं. एक पॉपुलेशन इकोलॉजी थ्योरी है, इंस्टीट्यूशनल थ्योरी है, स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी की थ्योरी है और लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की है. तो अब हम जरा आते हैं थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अडेप्टेशन में. माय डियर, सबसे पहले पॉपुलेशन इकोलॉजी है. ये बड़ी एक सिंपल सी, दे हैव मेंशन कि established organizations are unable to adapt to change. इसका मतलब क्या समझे आप लोग? बच्चों बताइए जरा प्लीज. सर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी पॉपुलेशन में यंग बंदे ज्यादा हैं, ओल्ड ज्यादा हैं, तो मुझे यंग वाले बंदों की एक प्रोडक्ट लानी चाहिए जिससे मेरी सेल ज्यादा और मैं मोनोपोली मतलब बना सकूं. नहीं बेटा, देखो बात सुनो, लफ्जों पे जाइए. लफ्ज ये हैं, established organizations are unable to adapt to change. established organization कौन सी होती हैं? जो वेल सेटल्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं. हाँ जी, उसकी वजह पता क्या है? ऑलरेडी सेटल्ड है. हाँ जी, ऑलरेडी सेटल्ड हैं. अब वो ऑर्गेनाइजेशन चूंकि अपने आप को समझती है कि हम बड़ी महा चीज बन गए हैं, बड़े हैं, हमें तो कोई खतरा नहीं है, और वो होता क्या है कि वो चेंज नहीं लाती. और जब वो चेंज नहीं लाती तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कारोबार से क्या हो जाती है. आप जिस तरह नोकिया ने अपने आप को क्या समझा कि हम बड़ी चीज हैं, और उन्होंने अपने आप को बदला नहीं, और जब नहीं बदला उनके मुकाबले में कोई दूसरे आ गए. इस थ्योरी को हम कहते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी. और वहाँ थ्योरी कहती है कि जो दुनिया में बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं, जो बड़े बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनमें एक दूसरे लफ्जों में मैं वाली लफ्ज आ जाती है कि मैं, हम तो जी ये हैं, हम तो इस तरह है. तो फिर वो उनके अंदर इनर्शिया आता है, सुस्ती आती है, काहली आती है, वो चेंज नहीं लाते. तो देखा, एक एंटरप्रेन्योरियल जो बिजनेसेस के जो लोग होते हैं, एक एंटरप्रेन्योर हमेशा एक स्मॉल बिजनेस को शुरू करता है और वो नए बिजनेस और उसको फिर इस्टेब्लिश करता है. लेकिन जो दुनिया में ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड बिजनेसेस होते हैं, उनके अंदर एक साइकी होती है कि वो समझते कि हम तो बड़ी नंबर 1 है, हम ब्रॉडर लेवल के ऊपर हैं. तो माय डियर, ये थ्योरी कहती है कि इन्होंने ये अखज़ किया कि दुनिया में जो इस्टेब्लिश बिजनेसेस होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, वो चूँकि अपने आप को बड़ा समझते हैं और वो चेंज नहीं लाते. इस थ्योरी को उन्होंने क्या नाम दिया है? पॉपुलेशन इकोलॉजी. पॉपुलेशन इकोलॉजी का मतलब है कि उनको फिर जो बड़े बड़े कंपनीज होती हैं वो अपने आप को चेंज नहीं लाते. तो टाइम कम्स कि वो फिर उनको इकोलॉजी, पॉपुलेशन का मतलब है कि दूसरी, जैसे छोटी एक मछली को बड़ी मछली खा जाती है, तो मतलब है कि वो फिर चूंकि वो सिस्टम में वजूद नहीं रख पाते, चेंज नहीं लाते. और इस थ्योरी को उन्होंने क्या नाम दिया है? पॉपुलेशन इकोलॉजी. यू गॉट द पॉइंट से? नेक्स्ट, institution theory. Organization adapt by imitating successful organization. वो कहते हैं जी कि इंस्टीट्यूशनल थ्योरी कहती है कि एक कंपनी अपने से ज्यादा सुपीरियर कंपनी को क्या करती है? इमिटेट करती है, वैसा होना चाहती है. और इस थ्योरी को उन्होंने क्या नाम, जैसे अभी हम कहें कि एक मार्केट के अंदर ए बहुत सक्सेसफुल है, तो अगर बी भी वैसा बनने की कोशिश करता है तो इस थ्योरी को वो इंस्टीट्यूशनल थ्योरी कहते हैं. तो पहली बेंचमार्किंग. हाँ, लेकिन वो जो बेटा बेंचमार्किंग की बात है, वो तो एक वे है ना कि जहां कहीं आप अपने से सुपीरियर बंदे को चेक करके अगर आप वैसा बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ये आप कर सकते हैं कि इसको कह सकते हैं.
लेकिन हम क्योंकि थ्योरीज पढ़ा रहे हैं, पॉपुलेशन इकोलॉजी में हम हमारी थ्योरी है कि जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो चेंज अपने आप को नहीं लाती, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल थ्योरी कहती है कि जो जो कंपनी होती है, ऑर्गेनाइजेशन, अपने से सुपीरियर ऑर्गेनाइजेशन को वो क्या करती है, वो इमिटेट करती है। और इन अदर सेंस जब आप इमिटेट करके आप बेहतर होने की कोशिश करते हो, तो जो आप लोगों ने कहा बिल्कुल ठीक है, उसे हम क्या नाम देंगे, बेंचमार्किंग। ओके, अच्छा ठीक। अब आइए स्ट्रेटेजिक चॉइस पर्सपेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन अडेप्ट टू चेंज एंड हैव द एबिलिटी टू रीशेप देयर एनवायरनमेंट। अब ये उससे भी आगे है, वो कहते हैं जी कि आप अडेप्ट चेंज और फिर आप अपने एनवायरनमेंट को रीशेपिंग का मतलब है कि आप इतना मजबूत होते हो, पहले आपने किसी को देख के जो चेंज आई उसके मुताबिक बदला, और फिर आपने अपने एनवायरनमेंट को रीशेपिंग का मतलब है कि जो आप चाहते थे उसके मुताबिक आपने किया। इसको आप स्ट्रेटेजिक चॉइस पर्सपेक्टिव कहते हैं। और फोर्थ वन इज ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग थ्योरी। माय डियर, ऑर्गेनाइजेशन अडेप्ट डिफेंसिवली एंड यूज नॉलेज टू इम्प्रूव देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग में क्या है कि पहले आप सीखते हो और फिर आप अपने एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप को बेहतर करते हो, और दिस इज बेसिकली कॉल्ड दी ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग थ्योरी। ठीक है, थर्ड वाला दोबारा बता दें, चॉइस पर्सपेक्टिव दोबारा बता दें। देखो जी, स्ट्रेटेजिक चॉइस पर्सपेक्टिव का मतलब है कि आप मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव में जो अपने अंदर देखते हो, अडेप्ट देखने, मतलब जैसे आपने चॉइसेस पर्सपेक्टिव में का मतलब है कि आपने तब्दील करना है, अपने आप को चेंज लाना है, तो यू आर गोइंग टू सी, विजुलाइज, और आप उन चॉइसेस में से चॉइस ए बी सी, और जो उनमें से बेहतर होती है आप उसको ऑप्ट करके और फिर उसको अपने आप के अंदर रीशेपिंग करते हो, मीन चेंजेस लेके आते हो। इसको स्ट्रेटेजिक चॉइस पर्सपेक्टिव की बात की है। क्लियर है? ओके सर। ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग हो गई जी। आगे हमारे पास क्या है? स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी, द एबिलिटी टू शिफ्ट फ्रॉम वन डोमिनेंट स्ट्रेटजी टू अनदर एंड रिक्वायर। ये बड़ी सिंपल सी बात है कि आप जब एक स्ट्रेटजी से शिफ्ट करके कोई दूसरी स्ट्रेटजी, जैसे फर्ज करें मैं अगर कहूं कि आप कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी ऑप्ट कर रहे थे, आपने वो स्ट्रेटजी को चेंज करके आप डिफरेंशिएशन की तरफ चले गए। जैसे आप मार्केट पेनिट्रेशन कर रहे थे, तो अब आपने मार्केट डेवलपमेंट की तरफ जाना शुरू हो गए। इसको माय डियर स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं। देखो, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब चेंजेबिलिटी है कि यू आर नॉट ऑप्टिंग जस्ट वन स्ट्रेटजी, रादर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप अपनी स्ट्रेटजीज में चेंजेस लाते हैं। और इसको हम इसके लिए हमें क्या चाहिए? लॉन्ग टर्म कमिटमेंट टू द डेवलपमेंट एंड नर्चरिंग ऑफ क्रिटिकल रिसोर्सेज और लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन आपके पास होनी चाहिए, अदरवाइज आप स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं कर सकते। यही जो अभी बात हमने लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की माय डियर की है। तो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन स्किल्ड एट क्रिएटिंग, acquiring and transferring knowledge and at modifying its behavior to reflect new knowledge and insight। तो जब आप अपनी स्किल को क्रिएट नया करो, अक्वायर करते हो, ट्रांसफरिंग करते हो। ट्रांसफरिंग से यहाँ मतलब सुन लें, देखें, एक कंपनी जब अपने लोगों को ट्रेनिंग सिखाती है और ट्रेनिंग के जरिए जब लोग नए नॉलेज को सीखते हैं, पहले आप क्रिएट किया, अक्वायर किया, ट्रांसफर किया। ट्रांसफर का मतलब माई स्किल आर बीइंग नाउ शिफ्टेड टुवर्ड्स स्टूडेंट, तो ये ट्रांसफरिंग ऑफ नॉलेज है एंड एट मॉडिफाइंग इट्स बिहेवियर। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आई जस्ट वुड बी टॉकिंग, बल्कि चलें बात शुरू हुई है, नॉलेज और स्किल में बच्चों क्या फर्क है? जो पढ़ के नॉलेज और स्किल में क्या फर्क है? सर, नॉलेज में सिर्फ हमें पता होता है और स्किल में हम उसे यूटिलाइज, मतलब यूज भी कर सकते हैं और हमारी वो एबिलिटी बन जाता है। वंडरफुल। बेटा, क्या नाम है आपका? हरीश। यू आर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? इस्लामाबाद कैंपस। वंडरफुल, बिल्कुल ठीक है। हरीश ने जो बात कही है इट्स 100%। और सुनिएगा प्लीज, देखो, नॉलेज आपका किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन रखना कि ये क्या है। जैसे मैं अभी आपसे पूछूं कि फॉर एग्जांपल कि व्हाट इज इन्वायरमेंट, व्हाट इज इंस्पिरेशन, व्हाट इज मोटिवेशन। तो मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का जो डिफरेंस है ये नॉलेज है। नॉलेज इज द कॉग्निशन, द अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू नो अबाउट समथिंग, प्रैक्टिकल सेंस में, ठीक है, इसको कॉग्निशन कहते हैं। और जब उस नॉलेज को आप अप्लाई करते किसी लेवल के ऊपर, तो माय डियर उसको स्किल कहते हैं। अच्छा, आप देखिएगा बात,
कि लर्निंग के अंदर उन्होंने क्या कहा, ट्रांसफरिंग नॉलेज एंड एट मॉडिफाइंग इट्स बिहेवियर। देखो बिहेवियर की मॉडिफिकेशन पता क्या होती है, ये वो है कि जब आप स्किल को अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, वो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर होती है। मसलन अभी फर्ज करें कि मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ मुमकिन है तमाम लोग गाड़ी ड्राइव कर लेते हैं, आप लोग जी सर। सब लोग जी सर। कोई ऐसे हैं जो नहीं चला सकते? जी सर। अच्छा, जिन्होंने कहा ना ऐसे भी हैं जो गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते, तो माय डियर दे माइट हैव अ नॉलेज ऑफ कार कि व्हाट इज कार, स्टीयरिंग, ब्रेकिंग सिस्टम, क्लच, बट दे ये वो डोंट हैव जानते हैं। स्किल। सॉरी, बट दे डोंट हैव स्किल। मीन के उनका नॉलेज तो है कि हाउ टू ड्राइव एंड व्हाट इज कार एंड व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट और उसकी फंक्शनैलिटीज क्या हैं। लेकिन उनका एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए नो, उनके पास अभी skill नहीं एक्सपीरियंस नहीं लफ्ज कहेंगे, अभी उनका स्किल नहीं है। स्किल जी। क्या है कि अगर वो उस चीज को अप्लाई करके एग्जीक्यूट कर लें तो ये स्किल है। सो अबिलिटी टू अप्लाई द नॉलेज इनटू सम प्रैक्टिकल फॉर्म, दिस इज कॉल्ड स्किल। लिहाजा जो गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते उनके पास नॉलेज तो हो सकता है माय डियर, लेकिन स्किल नहीं है। तो प्लीज लर्निंग, और जब आपका स्किल देखो कि जब आप उस चीज को अप्लाई कर लेते हैं, इसको मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर कहते हैं। वो बिहेवियर क्या हुआ कि पहले आप वो काम नहीं कर सकते थे, नाउ योर मसल्स हैव लर्नड दिस थिंग, योर मसल्स आर केपेबल टू अप्लाई सच थिंग, और जिस चीज को आप अप्लाई कर लेते हो वो आपका स्किल होता है। दिस इज द डिफरेंस माय डियर। अभी आप फॉर एग्जांपल, जी जी, ये जिसमें मर्जर एंड एक्विजिशंस के अंदर जो शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी या नॉलेज होता है वो भी इसके अंदर आएगा लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में। देखो माय डियर, देखो मेरी बात सुने, ये पहली बात है कि वो ये बात कह रहे हैं कि किसी चीज को क्रिएट करना, अक्वायर करना, ट्रांसफरिंग करना। मसलन देखें बात क्या लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में, क्रिएट क्या हुआ कि आपने एक थ्योरी बनाई, अक्वायर किया, उस थ्योरी को आपने याद कर लिया, ये अक्वायर आप उसको जान। अब ट्रांसफरिंग का मतलब है कि उसके मुताबिक अब मैंने जो अपना नॉलेज है मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्लास में जब क्लास लूंगा तो नेचुरली उसके अंदर मैं कई किस्म की डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा, ठीक है, वो आपकी क्या है, ट्रांसफरिंग ऑफ नॉलेज है। और जहां आप किसी चीज को फिजिकली कर सकते हैं वो माय डियर आपका स्किल है। तो दैट इज व्हाट दे हैव मेंशन, एन ऑर्गेनाइजेशन स्किल एट क्रिएटिंग, acquiring and transferring knowledge and modifying। मैं इस वक्त जो आप लोगों को थोड़ा सा क्लैरिटी की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि जो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर होता है, ये वही वाली बात है कि आपने एक मेडिसिन एमबीबीएस कर लिया तो नॉलेज आपके पास आ गया, लेकिन अभी आप ऑपरेशन अभी आप नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब आपके पास स्किल नहीं है। जिस दिन आप सक्सेसफुली ऑपरेशन कर सकते हैं तो ये आपके पास क्या हुआ, स्किल। लिहाजा पहले आपको नॉलेज दिया जाता है और नॉलेज की एप्लीकेशन जब आप सीख जाते हैं, ये मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर होता है। और जब आप किसी चीज को आपके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन आ जाए तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड स्किल। और जो स्किल्स आपने सीखा है माय डियर वो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है। और आपकी कंपनी हर टाइम क्या कहती है कि वो क्रिएट करती है, एक्वायर करती है, ट्रांसफरिंग ऑफ नॉलेज और मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर करती है। दिस इज बेसिकली कॉल्ड दी स्किल्स लाइन। यू गॉट द पॉइंट? कोई इसमें कंफ्यूजन है इसमें? अभी आप लोग एक अभी अब स्किल की बात है, स्किल के अंदर भी कई चीजें हैं। एक ब्लूम टेक्सोनॉमी कोई पढ़ी हुई है आप लोगों ने, किसी ने को जानते हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी? नहीं सर। नो। लिखिएगा जरा उसके ब्लूम टेक्सोनॉमी का पहले ये 6 स्टेजेस हैं, लिखिएगा। नंबर 1। सर समझ नहीं आया क्या बोला? मैं बेटा ब्लूम BLOOM ब्लूम टेक्सोनॉमी TEXONOMY, ये एक बड़ा खूबसूरत मॉडल है। इंसान जब स्किल की तरफ भी जाता है ना, उसकी भी स्टेजेस हैं। तो सबसे पहली स्टेज लिखिए, अब मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं। नंबर 1 लिखिएगा, रिमेम्बरिंग। लिख लिया जी? यस।
नंबर 2 लिखिए अंडरस्टैंडिंग। नंबर 3 लिखिए एप्लीकेशन। नंबर 4 लिखिए एनालिसिस। नंबर 5 लिखिए इवैल्यूएशन। और नंबर 6 लिखिएगा क्रिएटिंग। ये है माय डियर स्टेजेस। और जो तीसरी स्टेज से ऑनवर्ड है, ये आपका स्किल बेहतर से बेहतर होता जाता है। पहले मैंने क्या बताया जी? रिमेम्बरिंग। नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग। नंबर 3 एप्लीकेशन। अब देखिएगा, अगर आप स्टेज 1 पे हैं, 2 पे हैं, आपका नॉलेज तो है लेकिन आपके अंदर स्किल्स नहीं है। अब स्किल में तीसरा लेवल एप्लीकेशन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन और क्रिएटिंग। अब ये भी डिफरेंट है। जो बंदा क्रिएटिंग लेवल के ऊपर है उसका स्किल और है, जो इवैल्यूएशन लेवल के ऊपर है उसका स्किल और है, जिसका लेवल एनालिसिस है लेवल पे है वो और है, जो एप्लीकेशन पे और है, और जो सिर्फ अपनी कंप्रीहेंशन अंडरस्टैंडिंग करता है लेकिन वो अप्लाई नहीं कर सकता। तो माय डियर, दिस इज द डिफरेंस। बट एनी हाउ, नॉलेज इज सिंपल इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस। अगर आप किसी चीज को मेंटली जानते हैं, यू नो इट व्हाट इट इज, लेकिन आपने उसे अप्लाई नहीं कर सकते, तो आई एम श्योर लाइक दिस इज नॉट द लाइक skill. So skill is the where one can apply the acquired knowledge for doing practical, anything which you cannot do in practical. So that's what I think. This is simply theoretical. Anything which is a theoretical one, this is a knowledge, but that is not a skill. So that's why आज की जो education की for example cost accounting पे पढ़ रहे हैं, सो कॉस्ट अकाउंटिंग में आपने ये तो पढ़ लिया, आई मीन कि जी जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, लेकिन प्रैक्टिकली आपने कभी किसी कंपनी की जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग करके नहीं देखी। नहीं की। दैट्स व्हाई यू हैव अ नॉलेज बट यू डोंट हैव द स्किल। सो सेम इज द केस विद अकाउंटिंग। तो आप लोगों ने ये तो कर लिया कि जी आई मीन लाइक व्हाट इज एक्सपेंसेस, व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, व्हाट इज लेकिन किसी कंपनी के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हुए इस नॉलेज को कभी अप्लाई नहीं किया। दैट्स व्हाई जब तक वो अप्लाई नहीं करोगे आपका वो स्किल नहीं बनता। स्किल इज द एप्लीकेशन ऑफ द एक्वायर्ड नॉलेज फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस के लिए जब आप करते हो। तो माय डियर, पहले थ्योरी होती है और फिर जब थ्योरी की एप्लीकेशन हो जाए और यू आर एबल टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो दिस वुड बी कॉल्ड द स्किल। अब मेरा ख्याल स्किल में भी इंसान के आप देख लो, आपको डिफरेंट टीचर पढ़ा रहे होंगे लेकिन उनका स्किल लेवल डिफरेंट होगा। माइट बी समवन इज एट द एप्लीकेशन लेवल, समवन इज एट द एनालिसिस लेवल, समवन इज एट द इवैल्यूएशन लेवल एंड समवन इज एट द क्रिएटिंग लेवल। सो दैट्स व्हाई सेम इन द केस एक प्रोफेसर जो डॉक्टर होता है उसका भी इसी तरह है कि एक बंदे ने अगर ऑपरेशन पिछले 20 साल से किए हैं, उसकी एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा वो सीख चुका है, वो एनालिसिस भी जानता है, वैल्यूएशन भी जानता है, वो क्रिएटिंग भी कुछ कर सकता है। तो दैट्स व्हाट देयर इज अ डिफरेंस। ओके सर, स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी रिपीट कर दिए। देखो बेटा, देखिए पहली बात है आप फ्लेक्सिबिलिटी पे जाइए। फ्लेक्सिबिलिटी चेंजेबिलिटी को कहते हैं। देखो दुनिया में अगर आप किसी काम को चेंज नहीं कर रहे तो आप रिजिड हो। रिजिड का मतलब मैंने एक फॉर्मूला लिया, मैं उसी को इस्तेमाल करता हूँ, दैट्स द रिजिड। अच्छा, अब जब आप एक मेथड से निकल के किसी दूसरे मेथड को ऑप्ट करोगे, ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अच्छा, इसी तरह कंपनी एक स्ट्रैटेजी की जो स्ट्रैटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी है वो ये है कि आपके लिए जिंदगी में एक ही स्ट्रैटेजी नहीं, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी। तो कंपनी जब एक स्ट्रैटेजी को की जगह पे दूसरी स्ट्रैटेजी को ऑप्ट करना चाहे तो माय डियर दिस इज बेसिकली कॉल्ड स्ट्रैटेजी फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी। क्लियर? ओके। दिस इज फ्लेक्सिबल। अच्छा, आप देखिए मेरी बात सुनिए, मैं अभी आपको एक और कॉन्सेप्ट, फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी ब्रॉडर सेंस में इस्तेमाल होती है।
अभी आप लोगों ने सुना हुआ है ये यही लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, फिर इसी तरीके के साथ लाइकवाइज आउटसोर्सिंग का कॉन्सेप्ट सुना हुआ है? आउटसोर्सिंग सुना है सर। क्या चीज होती है आउटसोर्सिंग? आप किसी बाहर की सर्विसेज किसी बंदे की हायर कर लेते हैं। कर लेते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल फ्लेक्सिबिलिटी क्या चीज होगी? रिपीट कीजिएगा, सॉरी। न्यूमेरिकल Yes, फ्लेक्सिबिलिटी, sir. डू यू नो व्हाट इज न्यूमेरिकल फ्लेक्सिबिलिटी? सर लाइक अपनी जो है वो सर फ्लेक्सिबिलिटी आप जैसे कहीं से काम करवा लेते हैं। अच्छा, वो ये वही वाली बात है बेटा जी। ये से यूं समझें कि न्यूमेरिकल फ्लेक्सिबिलिटी, फर्ज करें मेरी टोटल टीम में 100 लोग काम कर रहे थे, विच आर परमानेंट वन। उसमें हम अब काम कर देते हैं इस तरह से। एग्जैक्टली, हाँ जी जी, वो इस तरह है कि बजाय कि मैं 100 लोग परमानेंट बेसिस के ऊपर रखूं, मैंने उनमें से 20 लोग परमानेंट रखे और बाकी जो लोग हैं 80 लोग हैं उनसे मैं आउटसोर्स कर लेता हूं और उनको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के ऊपर मैं रख ले और जब काम करवा के उनको फारिग कर दिया। मतलब मैं अब उसकी एक बेस्ट एग्जांपल, इस वक्त हमारा जो मुल्तान कैंपस है उसकी 100% फैकल्टी जो है वो परमानेंट नहीं है। वी ऑल आर कॉन्ट्रैक्चुअल पीपल और डिलीवरिंग लेक्चर इन मुल्तान कैंपस। माइट भी आप लोगों के भी हाँ ऐसा ही हो, बट आई थिंक ये क्या है कि ये न्यूमेरिकल फ्लेक्सिबिलिटी है। तो फ्लेक्सिबिलिटी का आजकल बहुत सारा जो सिस्टम है वो आप बजाय के परमानेंट काम करवाने के, पूरी टीम रखने के, आप चंद एक कोर टीम अपने पास रखते हो और बाकी रेस्ट ऑफ अदर पीपल आर बीइंग कॉन्ट्रैक्टेड और उनको आप आउटसोर्स कर लेते हो। अच्छा, ये भी एक फ्लेक्सिबिलिटी आ गई माय डियर। तो फ्लेक्सिबिलिटी कई किस्म की है। स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि यू आर नॉट स्टिक टू ओनली वन स्ट्रैटेजी ओनली, कि जी नहीं मैंने यही करना है, जी मैंने यही करना है। तो भाई देयर आर नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज आर देयर। देयर इज अ कॉस्ट लीडरशिप, देयर इज अ डिफरेंशिएशन, there is a focus strategy, there is a market penetration strategy, market development strategy is there, so integration strategy is there, backward integration आप कर सकते हैं, forward integration हो सकती है। ठीक है, दुनिया में वो मामला खत्म हो गया कि जी आप एक चीज जो बनानी है तो आप वाई नॉट जो इनपुट आप जहां से बाहर से परचेज करते हैं वो बजाय बाहर से बाय करने के खुद बनाने शुरू कर दो। दिस इज कॉल्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे बजाय के बना के आप, पुराना सिस्टम क्या होता था कि आप रिटेलर होलसेलर वगैरह को आप दे देते थे, वो आगे बेचता है, लेकिन आजकल कंपनीज अपना रिटेल सिस्टम खुद ओन्ड और करती है और जब आप ऐसा करते हैं तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड द forward integration strategy. The point is this one, that you are not stick only to the few choices. So that's why I think in strategic management there is a certain type of shifting of strategies from one strategy to another. तो जहां आपके अंदर ये capability हो कि you are opting and you are switching from one level to another, from one strategy to another strategy. So dear student, this would be called the strategic flexibility. I hope so that you got this concept, please. Yes, sir. Yes, sir. Now please slide पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? Basic elements of person. अच्छा, आप बेटा जी इनको आप सुन लें। This may be called the this is the stages. इसे हम strategic management stages, phases भी कहते हैं। लिहाजा जो मैंने स्टार्ट में आप लोगों को बताया था कि ये क्या है कि environmental scanning, strategy formulation, strategy implementation और strategy evaluation। ठीक है जी। और ये आप लोगों ने स्ट्रेटजी, हमारी सबसे पहले हम स्कैन करते हैं इन्वायरमेंट को। जब आप स्ट्रेटेजिक स्कैन करोगे तो इन्वायरमेंटल एनालिसिस, दिस इज टाइम कि जब आप सबसे पहले देखते हो कि जी हमारा इन्वायरमेंट कैसा है और उसमें यू आर ट्राइंग टू फाइंड योर अपॉर्चुनिटी, यू आर ट्राइंग टू फाइंड योर लाइक थ्रेट्स और इंटरनल इन्वायरमेंट में स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। और उससे पहले आप अपना, क्योंकि जब भी बिजनेस स्टार्ट करोगे तो यू सी योर विजन, यू सी योर मिशन। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये वो दो लेवल हैं। इस लेवल के ऊपर आप अपना इन्वायरमेंटल एनालिसिस करके अपना स्ट्रेटेजिक फिट फाइंड करते हो कि हमारे अपॉर्चुनिटीज़ और हमारी स्ट्रेंथ के मुताबिक मैच करके
और मिशन और उसके मुताबिक देन यू फाइंड योर गोल, और फिर उन गोल को अचीव करने के लिए आप स्ट्रेटजी फॉर्म करते हैं, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन फिर होती है, और स्ट्रेटजी इवोल्यूशन एंड कंट्रोल की तरफ आप चले जाते हैं। तो लिहाजा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट स्टेजेस, कंपोनेंट एलिमेंट्स आर, और मैंने बताया कि अगर आप फ्रेड की बुक देखोगे, कुछ बुक्स सिर्फ 3 स्टेजेस दिखती हैं, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन, स्ट्रेटजी इवोल्यूशन। सवाल पैदा होता है कि जब कोई बुक्स ऑथर लिखता है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, तो माय डियर उसमें जो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग एनालिसिस है वो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन का हिस्सा बना देता है, वो अब्जॉर्ब कर देता है, लेकिन ये बुक्स उनको अलहदा करती हैं, लिहाजा ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर आर 4 स्टेजेस और देयर इज 3 स्टेजेस। सो अगर आप 3 कहेंगे तो उस सूरत में आपको ये इन्वायरमेंटल स्कैनिंग को इसका हिस्सा बनाना पड़ेगा। यू गॉट इट? क्योंकि ये बुक आपको इस तरीके से कहती है, लिहाजा आप अपने माइंड में रखें कि इसकी बेसिक जो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन और इसके एलिमेंट्स हैं वो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग है, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन है, स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन है, और फिर आप स्ट्रैटेजी को इवेल्युएट और इवोल्यूशन की तरफ ले जाते हैं। तो दिस इज द एलिमेंट्स। आई होप सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरा ख्याल है। जी सर आपको सर गोल एक विजन आपका सर, उस पे स्पॉट एनालिसिस से अप्लाई होता है। सॉरी बेटा, दोबारा बात कीजिएगा। मैं कह रहा था सर कि एक गोल है, आप एक विजन है जो भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके ऊपर स्वॉट एनालिसिस से अप्लाई होता है ना। देखो बेटा, बात यह है, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। देखिए बात यह है, पहली तो बात है आपने अभी 2 चीज़ों को मिक्स कर दिया है, विजन को और गोल को। अब मैं इसकी एक लैडर बनाना चाहता हूं, बल्कि अभी फॉर द टाइमिंग आप अपने पास नोट कर लें। सबसे टॉप पे आपकी विजन होगी, विजन से हम मिशन निकालेंगे, मिशन से हम गोल निकालेंगे, गोल से हम ऑब्जेक्टिव निकालते हैं। प्लीज नोट कर लें। लास्ट वन मैं दोबारा बोलता, इसे मैं सबसे टॉप पे क्या है? विजन, जी, देन मिशन, मिशन से फिर हम गोल डिराइव करेंगे, जी, गोल से ऑब्जेक्टिव्स की तरफ हम आते हैं। अब ये आप एक ऑब्जेक्टिव से आगे स्ट्रेटजीज नहीं बेटा जी, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए स्ट्रेटजीज बनेंगी ना फिर आगे, बस। मतलब स्ट्रेटजी बेसिकली डायरेक्शन बताती है कि हमने उन गोल को, उन ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है। अभी इन्होंने बात की कि जी गोल और विजन, तो भाई इनमें फर्क है बेसिकली, और उसको अच्छा, अब इसके दरमियान में नेचुरली बात है कि जब आप अपने गोल सेट करोगे तो आपको अपने इन्वायरमेंट को देखना पड़ेगा। ठीक है, अभी पेंडेमिक आया तो पेंडेमिक आने से इन्वायरमेंट बदल गया। अभी बहुत सारे कई बिजनेसेस ने लोगों को फारिग कर दिया, कई लोगों ने बंदों को नहीं निकाला लेकिन उनकी सैलरी को रिडक्शन कर दिया। ऐसी है। ये क्या है? पेंडेमिक इज ए इन्वायरमेंट, बिकॉज ड्यू टू द पेंडेमिक ये मोस्टली इन इंडस्ट्रीज इट ब्रॉट अस थ्रेट्स, क्योंकि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट, और जो किसी चीज के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट लाता है वो थ्रेट्स हैं। अच्छा, अब ये कई बिजनेसेस के लिए अपॉर्चुनिटी लेके आया, बताएंगे किस तरह? सर मिल्क शॉप वालों के लिए, किन के लिए? ये फार्मेसी मेडिसिन वालों के लिए, मेडिसिन, और पर्टिकुलरली जो रिसर्च करने वाली कंपनीज है जो वैक्सीन बनाने जाए तो ये उनके लिए क्या है? दिस इज वन टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी। अच्छा, हुआ क्या? देखिए प्लीज, इन्वायरमेंट में चेंज आई। इन्वायरमेंट क्या थी? यदि लाइक कोरोना का स्प्रेड होना, ये अकर होना, एक जो पहले नहीं था वो हुआ, और दिस आई मीन लाइक फिनोमेना जब अकर हुआ तो इन्वायरमेंट में पता चला जी कैजुअलिटीज होना शुरू हो गई, इन्वायरमेंट बदल गया। पहले ऐसा नहीं था। अब जब चेंज आया तो मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज वो थ्रेट्स में चले गई और कुछ फॉर्म्स के लिए वो अपॉर्चुनिटीज बन गई। तो ये दुनिया में हमेशा ऐसा होता है। देखो, जो इन्वायरमेंट की वेरिएबिलिटी होगी उसकी चेंजेबिलिटी से, अगर वो किसी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट लाता है तो वो उसकी अपॉर्चुनिटी बन जाती है, और अगर वो उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है
So that is going to be a threat. Now, as a strategicians, you have to evaluate what are the threat, what are the opportunities. So point is this one, ladies and gentlemen, जो अभी इन्होंने बात की थी, तो गोल और ये जो आप स्ट्रेटजी बनाएंगे, इसीलिए मैं बार-बार ये बात कर रहा हूँ, प्लीज, without mission, vision, and without your strategic analysis, your external and internal, my dear, you cannot decide कि मैंने क्या करना है. जी ठीक है. Clear? थैंक यू सर. So this is what like. अच्छा अब आइए जरा इसी को, ये मैं वेलन ही की बुक को मैं ये बता रहा हूँ. आप देखें इन्होंने क्या बताया, बेसिक एलिमेंट में ये इसको मॉडल फॉर्म में कर दिया है. इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन इन कंट्रोल. तो इसका मतलब पहले स्कैन किया आपने, फॉर्मुलेट हुआ, स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन. दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजी के बेसिक एलिमेंट इन्होंने लिख दिए. अगर आपको क्वेश्चन अगर आ जाए कि स्ट्रेटेजी की आई मीन लाइक स्टेजेस क्या हैं, तो स्टेजेस में ये 3 या 4 स्टेजेस. स्टेज का मतलब है कि स्टेप 1 2 3 4. Strategy is moving in a sense like number 1 environmental scanning, number 2 strategy formulation, number 3 strategy implementation, number 4 strategy evaluation and control. और ये बेसिकली आपका लूप सिस्टम है माय डियर. फिर ये चीज इधर से इधर की तरफ आ जाती है. ये आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम है किस्म का. अगर ये इवैल्यूएशन और कंट्रोल में पता चलता है कि स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन में कोई खामी है या फॉर्मुलेशन में या फिर यहाँ कोई प्रॉब्लम है, तो दिस इज लाइक. अच्छा जी अब आइए प्लीज. दिस इज द होल स्टोरी माय डियर. इसको जरा आप लोग देखेंगे. ये मेरा ख्याल है आपको विजिबल हो रहा है जी? यस सर. नहीं, इसकी जो लिखा हुआ है वो क्लियर है? यस सर. सर अब क्लियर है सर. अच्छा जी, now I'm going to read. This is your whole book story. Basically, this is environmental scanning, that is strategy formulation. This is implementation, that is evaluation. अच्छा अब देखिएगा, environmental scanning के अंदर हम gathering information, ये external और ये internal है. इंटरनल एनवायरनमेंट. Now please, external में natural environment है, societal environment है और task environment है. Natural के अंदर I think हमारे पास रिसोर्सेज एंड क्लाइमेट आ गया. सोसाइटियल में इन्वायरमेंट, जनरल फोर्सेस जो हमारी, जिसको हम पेस्टल कहते हैं, हमारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड सो ऑन. और ये हमारे पास माय डियर टास्क इन्वायरमेंट का मतलब है कि ये इंडस्ट्री एनालिसिस है. अब इसे टास्क क्यों कहा गया? इस वजह से कि ये इन्वायरमेंट हमारी उस कंपनी को जिसमें हम हैं ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है. अब यहाँ से आपका एमसीक्यू बनेगा कि टास्क इन्वायरमेंट विच इज डायरेक्टली इम्पैक्टिंग टू द कंपनी. जनरल इन्वायरमेंट जो सोसाइटियल वो डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं करता, ये डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं करता वन फॉर्म को. तो हमने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को 3 हिस्सों में, नेचुरल इन्वायरमेंट, सोसाइटियल इन्वायरमेंट और फिर हमने टास्क इन्वायरमेंट. टास्क इन्वायरमेंट इज इंडस्ट्री इन्वायरमेंट. इंडस्ट्री मीन के साथ sort of industry which is impact. मतलब फॉर एग्जांपल हमारी एक शुगर इंडस्ट्री है, मीन फॉर्म है, तो पाकिस्तान में शुगर इंडस्ट्री का होल इन्वायरमेंट, नेचुरली बात है, अगर वो पॉजिटिव है तो हमारी फॉर्म को भी इम्पैक्ट पॉजिटिव करेगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव करेगा. दिस इज कॉल्ड टास्क इन्वायरमेंट. और जो सोसाइटियल इन्वायरमेंट है वो आपकी पूरी सोसाइटी में वो जो पेस्टल टाइप है. तो दूसरे लफ्जों में ये एक्सटर्नल में नेचुरल और सोसाइटियल ये पेस्टल है. PESTEL जानते हैं ना जी आप लोग पेस्टल? प्लीज क्लियर है? यस सर. अच्छा जी, नाउ देयर इज इंटरनल इन्वायरमेंट में इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस में. तो ये माय डियर स्ट्रक्चर मीन कंपनी का जो स्ट्रक्चर है, चेन ऑफ कमांड है. व्हाट इज चेन ऑफ कमांड? कितने सबऑर्डिनेट्स हैं, मतलब एक हायरार्की. कितने सबऑर्डिनेट बेटा नहीं होते, वो उसको हम कहते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल. हाँ, स्पैन ऑफ. ठीक है. दिस इज चेन ऑफ कमांड मीन हाउ अथॉरिटीज फ्लो डाउन फ्रॉम टॉप टू बॉटम. प्लीज, जो ऊपर से लेकर हायरार्की लेवल और कनेक्टिविटी, ये बेसिकली आपको बताता है कि हु इज योर सबऑर्डिनेट और हु इज
your boss to whom you have to report. अपर मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट था। बेटा उससे भी ज़्यादा आप ये कहें कि किसी कंपनी के अंदर टॉप से लेके बॉटम तक जो लोग चेन ऑफ कमांड में जो कनेक्टेड लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है, जैसे मैं कहूँ कि HDL का मुझे जी फ्लो ऑफ अथॉरिटी बताएं, तो आप बताते हैं जी सबसे टॉप पे ये डायरेक्टर है, उसके नीचे फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर इसको आप क्या नाम दोगे? चेन ऑफ कमांड। क्लियर? और स्ट्रक्चर है इसमें सारा सिस्टम, अरेंजमेंट ऑफ जॉब, वर्टिकली हॉरिजेंटल डिपार्टमेंट, ठीक है, वो जो स्पेशलाइजेशन, चेन ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, सो फॉर्मलाइज, ये सब के सब आपके स्ट्रक्चर की बातें हैं। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, बाउंड्रीलेस स्ट्रक्चर आ गए आजकल, मतलब है। बट एनी हाउ आई थिंक बिकॉज योर स्ट्रक्चर स्टडी ऑफ योर कंपनी वुड गिव यू द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। और सेम लाइक आपका कल्चर, क्योंकि कल्चर is the value, norms, beliefs, custom, rituals which are widely practiced and accepted in your company. और इसी तरह ये resources आ गए, resources में आपके assets हैं, tangible, intangible, whatever the case. So my dear point was that कि आपका environmental scanning सबसे पहले, उसमें external और internal, और once you will study, you will find your opportunity, your threats, your strength and weaknesses. This is called SWOT, SWOT. So ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आई एम श्योर लाइक हम ये वाली एक्टिविटीज। अच्छा, अब आइए स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में। अच्छा, डेवलपिंग लॉन्ग रेंज प्लान में अब देखिए, अभी हम इस बहस में नहीं जाना चाहते। इन्होंने देखें सब मिशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज। तो आप स्ट्रेटजीज ये फॉर्मुलेट कर रहे हैं, इसका मतलब फॉर्मुलेशन का मतलब मेकिंग द स्ट्रेटजी, डिजाइनिंग द स्ट्रेटजी, और उसके लिए डेवलपिंग विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसीज वगैरह, स्ट्रेटजी प्लानिंग, ये सब लाइक दिस वुड बी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। और वंस स्ट्रेटजी फॉर्मुलेटेड, अगला काम कौन सा स्टार्ट हो जाएगा? स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, अब मुझे आप लोग थोड़ा सा बताइए कि ये इम्प्लीमेंटेशन से क्या बेटा जी आप लोग बच्चों समझते हैं? इससे पहले चॉइसेस नहीं आएंगी या खाली इम्प्लीमेंट कर देंगे? बेटा जी देखो, अब चॉइसेस जब हम करते हैं, वो ये चॉइसेस इसके अंदर आएंगी, ये वाली। क्लियर? ये चॉइसेस का एरिया है। देखें, फॉर एग्जाम्पल आपने 3-4 चॉइसेस हैं, उनमें से बेस्ट चूज करके आप इसका मतलब स्ट्रेटजी सिलेक्ट कर ली। तो जब स्ट्रेटजी को सिलेक्ट किया तो आपकी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन ही तो हुई है माय डियर। ओके। और इसके बाद फिर देखो, बात ये है कि स्ट्रेटजी की जो चॉइसेस है ना जी, वो तो ये है कि आप नंबर ऑफ ऑप्शन ले रहे हैं और उनमें से फिर एनालिसिस करके जो बेस्ट है उसको पिक करते हैं। बस ये तो हम जिंदगी में हर टाइम करते हैं कि जी चॉइस 1, चॉइस 2, चॉइस 3, उसको इवेल्युएट करके जो उसमें से बेस्ट है उसको चुन लेते हैं। इसको पता क्या कहते हैं? ये रैशनैलिटी कहते हैं इसको। रैशनल बिहेवियर हमेशा ऑप्टिमाइज करने की जो, ठीक है, ऑप्टिमाइजिंग द रिजल्ट फ्रॉम द डिफरेंट अवेलेबल चॉइसेस में से जो बेस्ट चॉइस को चूज करने को हम रैशनैलिटी कहते हैं माय डियर। वो तो हम हर जगह पे कर रहे होते हैं। लिहाजा जब आप स्ट्रेटजी सिलेक्शन, ठीक है, देखो स्ट्रेटजी सिलेक्शन से भी पहले क्या है, उसकी इवैल्यूएशन करोगे, ठीक है, और फिर स्ट्रेटजी को पहले आप देखते हो, तो चॉइसेस, एनालिसिस और फिर इवैल्यूएशन करते हैं और फिर सिलेक्शन कर लेते हैं। बट एनी हाउ यहां तक ये आपका सारे का सारा फेज ये फॉल करेगा माय डियर। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन। जी प्लीज। तो जो हम लोगों ने स्ट्रेटेजी बनाई है उनको जो है वो हम लोग जब इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब एक्शन में लेके आते हैं उन प्लान्स को। हाँ, इसको ये एक्शन में आ गया। कोई मुझे बेटा जी कोई एग्जैक्टली कुछ बताइए, कोई कंक्रीट एग्जांपल दें, क्योंकि यहाँ अक्सर कंफ्यूजन लोगों में रहती है। इम्प्लीमेंटेशन क्या चीज़ होती है? एक्शन में लेके जाना है। फॉर एग्जांपल ये उन्होंने लिखा है प्रोग्राम, बजट्स वगैरह, प्रोसीजर, ये क्या चीज़ है?
बजट फॉर्मुलेशन में नहीं आएगा सर? जी? बजट जो है आपका फॉर्मुलेशन में नहीं आएगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन मतलब अकॉर्डिंगली? नहीं, अगर आप इसमें कह रहे हैं कि इसका मतलब बजट गलत लिखा गया है, इसको फॉर्मुलेशन में जाना चाहिए। सर मैं कह रहा हूँ इम्प्लीमेंटेशन से मुराद कंस्ट्रेंट्स हैं। जी बेटा, इम्प्लीमेंटेशन से मुराद कंस्ट्रेंट्स हैं, मतलब उस कंस्ट्रेंट को रहते हुए हमने उसमें उसको एक्शन में लेके आना है। माय डियर, आप मुझे बताया जब प्लानिंग कर रहे हैं तो कॉन्स्ट्रेंट तो उस वक्त भी आप देख रहे थे ना कि जी हमारे पास जो बजट प्रोजेक्ट लगाना है वो इतने पैसों के अंदर लगना चाहिए, ठीक है। कॉन्स्ट्रेंट तो हमेशा वहां पे आप उस वक्त भी कंसिडर कर रहे होते हैं, ये तो इम्प्लीमेंटेशन है। अब इम्प्लीमेंटेशन में इसीलिए मैंने कहा था कि एक हमारे स्टूडेंट ने, डियर स्टूडेंट ने कहा था कि जी सर एक्शन में बेटा किस तरह, प्लीज तो उसे हम लोग प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं ना, मुझे एक्सप्लेन करना बेटा। नहीं। अब एग्जाम्पल बताइए, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल किस तरह होगी। देखो इसकी बड़ी आप सिंपल एग्जाम्पल थी कि जो आपने स्ट्रेटेजी अब आपने जो एग्जीक्यूट करनी है ना बेटा जी, अब उसके लिए फर्ज करें आपको न्यू टेक्नोलॉजी चाहिए, तो अब यू विल बी स्टार्टिंग टू परचेज न्यू टेक्नोलॉजी। आपको ह्यूमन रिसोर्स के लोग और चाहिए, तो आप यू विल बी स्टार्टेड टू रिक्रूट एंड सेलेक्ट दी ह्यूमन रिसोर्सेज। आप उनको ट्रेनिंग देना शुरू कर दोगे, फंडिंग एलोकेशन शुरू कर दोगे, ठीक है। ये होता है डिपार्टमेंट। आपने फर्ज करें आपका ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, तो आपने उसको टीम बेस करना है, तो अब आप अपने अंदर स्ट्रक्चर कौन सा लेके आओगे, टीम बेस। ये जब आप स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो, ये एग्जीक्यूशन होती है। दिस इज कॉल्ड, इसका मतलब है कि नाउ यू हैव पुट योर स्ट्रैटेजी इनटू एक्शन। प्लीज, दिस इज कॉल्ड प्रोग्राम। प्रोग्राम का मतलब है कि अब काम शुरू हो गया है। You have started to allocate your resources. Fund have been released. The employees have been recruited. Training have been started. So technology have been purchased. उसकी installation शुरू हो गई है, काम शुरू हो गया है। This is implementation. अब देखो ना, अगर ICMAP हेड ऑफिस एक स्ट्रेटेजी बनाता है, तो उसकी एग्जीक्यूशन क्या होगी कि तमाम कैंपसेस में उस टाइप के टीचर हायर करना शुरू कर दिए हैं, तो ये क्या है, इम्प्लीमेंटेशन हो गई। उन्होंने मल्टीमीडिया परचेज करना शुरू कर दिए, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट, और उसके लिए जो कुछ टेक्नोलॉजी खरीदनी है वो उन्होंने अब खरीदना शुरू करके और टीचर्स को हायर शुरू कर दिया है। इसका मतलब स्ट्रैटेजी किस में चले गई है, एग्जीक्यूशन साइड की तरफ। एग्जीक्यूशन। बेटा क्लियर होगी बात? जी सर। तो ये जो यहाँ लफ्ज प्रोग्राम है, इससे मतलब है कि now resources practically are being implemented and practically being allocated, budgets, procedures, or finally then it would be like a performance mean कि अब काम शुरू हो गया, एक्चुअल हम उसको देखेंगे। और इवैल्यूएशन का मतलब भी उसमें मैं 3 बातें कहना चाहूँगा डियर स्टूडेंट। भी आप कभी इवैल्यूएशन की तरफ जाते हैं तो नंबर 1 यू मॉनिटर कि यू मेजर व्हाट इज एक्चुअल बीइंग डन, और जो आप मेजर करते हो उसको आप इवैल्यूएट करते हो, कंपेयर करते हो विद द स्टैंडर्ड, ठीक है। और फिर जब जैसे आप एक्चुअल को स्टैंडर्ड से मेजर करोगे, यू फाइंड अ गैप, यू फाइंड अ डिफरेंस, और अगर वो डिफरेंस विद इन टॉलरेंस लिमिट है तो इग्नोर कर दोगे, और अगर वो डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो देन यू हैव, एंड दिस इज कॉल्ड इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। So this is where a strategic management model have been discussed, in which we have elaborated. There are 4 stages. There are 4 components according to the this book, and that is environmental scanning. So strategy formulation, strategy implementation, and strategy evaluation. Please. Any question, my dear? शेयर कर देंगे, आप पे करेंगे। Sorry. लेक्चर फिनिश हो रहा है सर, लेक्चर फिनिश हो रहा है। Sorry. मेरा तो लेक्चर अब खत्म हो रहा है। Sorry, समझ नहीं आई। सर मैंने कहा लेक्चर फिनिश कर रहे हैं आप। 9 बजे खत्म। नहीं, अगर आप चाहते तो मैं अभी डिस्कशन कर सकता हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा, उससे पहले मेरे 2 क्वेश्चन हैं। जी जी बेटा, प्लीज वेलकम। सर पहला क्वेश्चन ये है कि आपने जो 2 बुक्स बताई हैं, ये दोनों बुक हम रेफर करेंगे या एक बुक लेंगे कोई? नहीं बेटा, मैं आप दोनों को बाय करें और मैं दोनों को ही
प्रेफर करूंगा, और बिकॉज दिस वुड बी कंप्लीटली कम्प्रीहेंसिवली लाइक कवर योर कोर्सेस। ठीक है, थैंक यू सर। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि दोनों को अभी आपने कहा था व्हाट्सएप पे मैं शेयर करूंगा स्लाइड्स, तो काइंडली एक रिक्वेस्ट ये होगी कि अगले लेक्चर से पहले नेक्स्ट लेक्चर की स्लाइड जो है वो पहले शेयर कर दिया करें, ताकि हम जो आप बताते हैं ना नोटिंग फिर उसके ऊपर कर लें, स्लाइड्स के ऊपर। ठीक है, मैं उसका जो मटेरियल होगा ऑलरेडी। सॉरी सर ग्रुप कोई ऑलरेडी बना है? समझ नहीं आ रही बेटा। सर व्हाट्सएप बना हुआ है? नहीं, मुझे अभी आई डोंट थिंक सो, मेरे पास तो नहीं है, बल्कि आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोगों का लाइजोन होना चाहिए। मेक ए वन व्हाट्सएप ग्रुप, शेयर विद मी, और देन वो जो एनी सॉर्ट ऑफ मटेरियल वो हम इंशाल्लाह उसके जरिए से आप तक पहुंचाएंगे। फिर सर आप अपना अगर नंबर हमें दे दे कोई, हम उस पर सबको अपना नाम लिख के मैसेज कर दें। जी, नंबर मैं अभी आपको यहाँ बोल दूं, आप नोट कर लीजिएगा। यस सर। बता दूं। जी 0321 जी 636 8747, और my name is Yasin Jamal. I belong to Multan city here. I am the faculty member of Multan campus. Basically, my profile is सर this one. नंबर रिपीट कर दें। सर नंबर Zero- रिपीट कर दें। 0321 636 8747। सर लास्ट सेमेस्टर में आपने ही पढ़ाया था स्टूडेंट्स को? कहाँ पे? ऑनलाइन बेटा? जी नहीं, ऑनलाइन की बात कर रहे हैं? जी सर। नहीं, लास्ट टाइम मैं नहीं था। मैं थैंक यू सो मच सर, आपका नंबर दे देगा, हम इस पे आपको टेक्स्ट कर देंगे, अपना नाम लिखे। ठीक हो गया। और ये आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको वो कर लें, ताकि हमारा एक ग्रुप बन जाए और हम वो जो चीजें भी हैं वो शेयर हो जाए हमारी सारी के साथ। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके सर। चलें जी, इंशाल्लाह कल मुलाकात रहेगी इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।